Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. Welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we will give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we don't address company-specific queries. You can call us on 2331 4444, 2371 7106 and 2371 7117. I'm Anubha Rohatgi and with me is my co-anchor in Hindi, Vishal Sharma. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में लाएंगे आप तक ताजा आर्थिक समाचार। आज सोमवार है, प्रत्येक सोमवार की तरह आज भी आपके सवाल कार्यक्रम में शामिल किए जाएंगे। आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी विषय पर आप सवाल पूछ सकते हैं। यहां आपको बता दें कि कार्यक्रम में हम किसी विशेष कंपनी या स्टॉक के बारे में आपको जानकारी नहीं दे पाएंगे। सवाल पूछने के लिए इन नंबरों पर आप हमें फोन कर सकते हैं 23314444, 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। प्रमुख खबरों पर चर्चा और सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ चुकी हैं आर्थिक विशेषज्ञ डॉक्टर यामिनी अग्रवाल। यामिनी, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत। नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहले हेडलाइंस के साथ अनुभा। Key domestic indices gain 1% to hit lifetime highs. Sensex achieves 49,000 level. Nifty closes near 14,500 mark. Rupee weakens 14 paisa against the US dollar. And Brent crude prices rise around 3% amid expectations of demand revival. प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक 1% की बढ़त से नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे। सेंसेक्स ने 49,000 के स्तर को छुआ। निफ्टी 14,500 के नजदीक हुआ बंद। डॉलर के मुकाबले रुपया 14 पैसे कमजोर हुआ और मांग में बढ़ोतरी की उम्मीदों के बीच ब्रेंट कच्चे तेल के दाम लगभग 3% चढ़े। बात सबसे पहले सेंसेक्स के नए रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने को लेकर मिले जुले वैश्विक संकेतों के बीच प्रमुख घरेलू शेयर बाजार आज करीब 1% की बढ़त दर्ज करके नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स ने पहली बार 49,000 के स्तर को छुआ, जबकि निफ्टी 14,500 के स्तर के नजदीक पहुंचकर बंद हुआ। सेंसेक्स 1% की वृद्धि से 487 अंक ऊपर 49,269 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 138 अंक के उछाल से 0.96% की बढ़त से 14,485 पर पहुंच गया। व्यापक बाजार की बात करें तो बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स का प्रदर्शन सेंसेक्स से कमजोर रहा। मिड कैप इंडेक्स में 0.08% की मामूली गिरावट रही, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स 0.17% के नुकसान में रहा। Benchmark domestic stocks today gained around 1% to hit fresh lifetime highs amid mixed global cues. The Sensex achieved 49,000 level for the first time, while the Nifty closed near 14,500 mark. The BSE Sensex climbed 487 points or 1% to 49,269 and the NSE Nifty rose 138 points or 0.96% to trade at 14,485. In the broader market at BSE, mid-cap and small-cap indices underperformed the Sensex. The BSE mid-cap index slipped marginally by 0.08%, while the BSE small-cap index fell 0.17%. In the Sensex pack, shares of 20 companies climbed while 10 logged losses. HCL Tech was the top gainer as it gained 6.1%, followed by Infosys, which gained 4.9%. HDFC climbed 3.7%, Maruti gained 2.8%, and Tech Mahindra added 2.5%. On the other side, Bajaj Finserv and Bajaj Finance both declined 1.9%. Reliance also fell 1.9%, while Larsen & Toubro and Kotak Bank ended around 1.6% down. In sectoral indices, 12 out of 19 sectors climbed. The IT sector was the top gainer as it surged 3.6%, followed by tech, which climbed 3.1%. Auto gained 2.6%. On the other hand, energy declined 1.3%. Telecom and capital goods both fell 1.1%.
The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 1,468 companies gained while 1,690 declined. Shares of 140 companies remained unchanged. 501 companies rose to their 52-week high while 40 companies fell to their 52-week low. और कार्यक्रम के हमारे आज के पहले श्रोता हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं पार्थ। पार्थ, कार्यक्रम में आपका स्वागत। थैंक यू सर। जी, क्या सवाल है आपका? मेरा दो सवाल है। पहला सवाल तो ये है ऑयल के प्राइसेस को लेके ये सवाल है मेरा कि जब क्रूड ऑयल के प्राइस बहुत कम और बहुत लो हो गए थे तब भी हमारी कंट्री में पेट्रोलियम के प्राइस जो हमको पेट्रोल डीजल मिलता है वो काफी हाई थे, और अभी भी जब मार्केट में पेट्रोलियम के प्राइस क्रूड ऑयल के बढ़ गए हैं तभी भी हमारे यहाँ प्राइस हाई चल रहा है जी। तो इसका क्या इम्पैक्ट होता है? जब मार्केट में प्राइस क्रूड ऑयल बहुत ही कम हो जाता है तब भी हमारे देश में ऑयल के प्राइस कम क्यों नहीं होते हैं? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि हम लोग जो बाहर के स्टॉक है उनमें कैसे हम लोग वो कर सकते हैं निवेश? जी जी, आपके पहले सवाल के लिए जो भी आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं या जो प्रोडक्ट्स हैं वो डी एडमिनिस्टर्ड हैं और जो भी इंटरनेशनल प्राइसेस होती हैं उन्हें रिफ्लेक्ट करती हैं प्राइसेस में। क्योंकि सेंट्रल टैक्सेस और स्टेट टैक्सेस बढ़ गए थे इसलिए जब प्राइसेस कम हुई तो हमने देखा नहीं कि जो है प्राइसेस बहुत ज्यादा गिरी हों, थोड़ी गिरी थी फिर वापस बढ़ गई थी। ऐसे ही क्योंकि अभी टैक्सेस बढ़े हुए हैं तो प्राइसेस हायर लेवल पे हैं। काफी क्वेश्चन रेज हो रहा है कि इन टैक्सेस की वजह से प्राइसेस हायर लेवल पे हैं और इसी लेवल पे रहती हैं जब लोअर प्राइसेस होती हैं। जी, और इनका दूसरा सवाल यामिनी जी था, फॉरेन मार्केट्स में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? जी, फॉरेन मार्केट्स में जिनमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके स्टॉक एक्सचेंजेस की रिक्वायरमेंट्स होती हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए। जैसे हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स के रिक्वायरमेंट्स होती हैं पार्टिसिपेटरी नोट्स में थ्रू पार्टिसिपेट करने की, वैसे ही उनकी रिक्वायरमेंट होती है। आप जहां निवेश करना चाहते हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स आपको फुलफिल करनी होगी जिस देश में करना चाहते हैं। Now the next listener is on the line with us. That's Manohar Shastri from Amritsar. Manohar, please welcome to the program and ask your question. थैंक यू। नमस्कार, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह से मार्केट हर रोज राइज कर रहा है, ये राइज प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी या जीडीपी को देखते हुए अनरियलिस्टिक सी लगती है। तो इसके चलते अगर किसी ने पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो पर प्रॉफिट बुक कर लिया हो तो क्या उसके लिए इस समय एंटर करना उचित है, और अगर नहीं तो कब तक वेट करना चाहिए? जी, मार्केट्स में हमेशा एंटर तब करना अच्छा रहता है जब वो लो होती हैं। जब कोविड स्टार्ट हुआ था तब मार्केट्स काफी लो पहुंच गई थी और उस समय काफी लोगों ने एंट्री की थी, जिसका उन्हें अभी फायदा हो रहा है जब मार्केट्स एक ऊंचाई पे पहुंची है। अभी भी आप मार्केट्स में एंटर कर सकते हैं क्योंकि काफी स्टॉक्स होते हैं जो अंडर वैल्यूड होते हैं। अगर आप उनमें निवेश करें और उन सेक्टर्स में निवेश करें जहां पे लोअर वैल्यू है वहां पे आपको रिटर्न मिल सकता है। जहां तक रियलिस्टिक एस्टिमेट्स की बात है, ओवरऑल एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है वैक्सीनेशन को लेकर के और रिकवरी को लेकर के। माना जा रहा है कि आगे आने वाले सत्र में जीडीपी ग्रोथ रहेगी और कॉन्ट्रैक्शन भी 10% से जो है रहने की जगह 7-7.5% के आसपास आ गई है। जी, और दिल्ली से हमारे एक और कॉलर जुड़ गए हैं, सतीश कुमार जी। सतीश। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? मैं मैडम से पूछना चाहता हूँ। मैडम, जैसे आपने कई बार ये न्यूज देखी होगी कि भाई 2021 से लेके 2030 के बीच में दुनिया के सभी देशों से पेपर करेंसी को समाप्त कर दिया जाएगा। तो मैडम, भारत में कितना समय लग सकता है ये पेपर करेंसी एकदम से सारी हटने के लिए? ये आइडिया बताइएगा मैडम। धन्यवाद जी। अभी ऐसा कोई जो है स्ट्रक्चर नहीं बना कि पेपर करेंसी को हटा दिया जाएगा। 2 साल या 2.5 साल पहले आरबीआई ने एक स्टडी ग्रुप की बात की थी जो डिजिटल करेंसीज के बारे में थी, ये लेकर के कि ऐसी करेंसी के बारे में सोचा जा सकता है और लाई जा सकते हैं, पर पेपर करेंसी अभी कंटिन्यूड रहेगी। And now from Kolkata we have Nihar Rawat on the line. Nihar, welcome to the program and please ask your question. Yeah ma'am, very welcome. मेरा 2 क्वेश्चन है। पहला तो दैट इज रिलेटेड टू योर प्रोग्राम एंड सेकंड मेरा पर्सनल क्वेश्चन है। तो योर प्रोग्राम रिलेटेड मैं पूछ सकता हूँ? प्लीज गो अहेड। हाँ, थैंक यू। एक्चुअली मैम, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है दैट मार्केट मंत्रा, मतलब एवरी वन इन ऑल इंडिया शुड इंटरेस्टेड इज टॉक टू यू, ऑल ऑफ यू।
तो थोड़ा सा इसको अगर टाइम बढ़ा दीजिए या डे बढ़ा सकते हैं तो उसको कंसिडर करिए प्लीज। और सेकंड मेरा जो पर्सनल क्वेश्चन है वो है कि सपोज मैं एक लाइफ इंश्योरेंस स्कीम में, मैं एक कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लाइफ इंश्योरेंस LIC स्कीम में अगर मैं सपोज इन्वेस्टमेंट किया हूँ तो मेरा 8-9 इंस्टॉलमेंट में बाद मुझे लगता है कि उसके बहुत पैसे कम है, तो मैं उसको चाहता हूँ कि वो पैसे विड्रॉ करके मुझे कुछ मार्केट में या म्यूचुअल फंड में लगाना है, लेकिन उसका जो सरेंडर वैल्यू वो बहुत कम है। तो ऐसा क्यों है? मुझे थोड़ा आइडिया नहीं है, कुछ बता सकते हैं क्या? जी यामिनी जी, पहले आप जवाब दीजिए इनके सवाल का। जी, आपके जो भी एग्जिट वैल्यू होती है या तो वो ट्रेडेबल वैल्यू होती है, जहां तक मैं समझ पाई हूँ कि आपका जो ओवरऑल ट्रेडेड वैल्यू है वो कम है। ऐसा हो सकता है कि स्टॉक्स में वॉल्यूम्स नहीं है और बहुत सारे इन्वेस्टर्स उसमें निवेश नहीं करना चाहते, इसलिए उसकी जो वैल्यू है वो कम है। अगर आपको ग्रोथ नहीं नजर आ रही है और आपको लगता है कि ये वैल्यू पे आप जो है अपना प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे या लॉस को स्टॉप करना चाहेंगे, तो उस को आप बेच सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज में। अगर कंपनी बायबैक ऑफर करती है तो आप उस प्राइस पे उसको बेच सकते हैं। जी, और अगर सरेंडर वैल्यू की बात करें यामिनी जी LIC की पॉलिसीज की, तो क्या उसमें अच्छा जितना इन्वेस्ट हम कर चुके होते हैं सरेंडर करने पे क्या अच्छा लाभ हो पाता है या नुकसान में रहता है डिवीजन? आप पॉलिसी से रेफर कर रहे हैं, तो ये जो पॉलिसी होती है उसके अंदर जो सरेंडर वैल्यू होती है, उस सरेंडर वैल्यू आपको मिल जाती है जब आप पॉलिसी खत्म होती है, मैच्योर होती है, जब आप सरेंडर करते हैं। सॉरी And Neha, thank you very much for appreciating our program, and we are really glad that people all over India listen to it very carefully. And as for your suggestion for increasing the duration, we will definitely pass on this message to the authorities, and let's hope that it happens in the future. और यहाँ आपकी जानकारी के लिए ये बता दें आपको कि हाल ही में हमने मनी मैटर्स करके एक प्रोग्राम शुरू किया है जो कि 3 बजे से लेकर के 3:10 तक होता है। दिन भर का जो कारोबार है शेयर बाजार का, उसके बारे में हम अपडेट देने की कोशिश करते हैं, आप उसको भी सुन सकते हैं। Right, and now there is a listener from Delhi, Jitendra. Jitendra, welcome to the program. Hi, good evening to the entire team. My question to Madam Yamini is that due to a relentless flow of money by FIIs into the equity, around 2,000-3,000 crore daily, the market is rising and it has gone to almost 50,000 level of Sensex. So, in your opinion, ma'am, when will the correction come? And will it come just after budget when the expectations will not be met? Thank you. Well, I don't think the budget would be the factor where the corrections would come in, but the corrections can come in because there is a lot of volatility in the market. So if there are any fresh lockdowns, which may be an announcement in Europe or other places, or the strain which has been detected new has an effect on the overall economic recovery, then the corrections would be seen. Again, any particular negative impact of the COVID which puts us into a more stressful situation may be a reason for more corrections. Otherwise, the earnings as well as the economic recovery keeps a positive force in the market. So there might be some corrections, but it will pick up again. And from stocks, let's move to currency. The rupee today weakened 14 paisa in afternoon deals to trade at 73 rupees and 39 paisa against the US dollar. The domestic unit depreciated mainly due to rise in the American currency. The dollar index, which indicates the US dollar's strength against a basket of 6 other leading currencies, strengthened 0.38% to 90.44 in intraday deals. जी, और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं मोदी नगर से अशोक कुमार जी कार्यक्रम में। अशोक जी, कार्यक्रम में स्वागत। हाँ, नमस्कार जी। जी नमस्कार। आपको नमस्कार। और यामिनी जी से मेरा सवाल ये है कि बजट आने वाला है, बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इम्पोर्टेंट जो भी अच्छे सेक्टर्स हों उनके बारे में बता दीजिए जहाँ पे बाइंग कर सके। जी, बजट के अनुसार तो नहीं बता सकती मैं आपको, पर आपको ये बता सकती हूँ कि IT, फार्मा, बैंक्स और आपके कंज्यूमर गुड्स एक अच्छे सेक्टर्स हैं जिनमें आप निवेश कर सकते हैं और एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है आपको। मेटल्स भी एक अच्छे सेक्टर है, उसमें भी निवेश करेंगे तो एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। Yamini, what about the auto and the pharmaceutical sectors? The auto sector has picked up well, and the pharmaceutical sector is itself a good sector to invest. So as I said, IT and pharma continue to remain an evergreen sector where good returns have been seen.
Other sectors, as I mentioned, banks, FMCG, would be good sectors for investment. And now from Mumbai, we have Ratnakar on the line. Ratnakar, please ask your question. जी रत्नाकर जी सवाल पूछिए। हेलो, गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। मेरा सर है, अभी मार्केट ऑल टाइम हाई है 49,000, तो जो डिफेंस स्टाफ है उसका और कितना बढ़ना संभव है, तो डिफेंस स्टाफ में हम कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं? जी, डिफेंस सेक्टर एक अच्छा सेक्टर है जिसके अंदर काफी अंडरवैल्यूड स्टॉक्स हैं और गिवन दी ओवरऑल डेवलपमेंट एक अच्छा परफॉर्मेंस रह सकता है, तो उसमें निवेश किया जा सकता है। जी, और अब आरएस धैया हमारे साथ हैं फोन लाइन पर दिल्ली से। जी हेलो जी, आपने रेडियो सेट की आवाज थोड़ा सा कम कर लें। मैं करता हूँ जी। जी दया जी सवाल पूछिए। सर, माय क्वेश्चन इज टू यामिनी जी that in case I sell some shares or mutual fund units and I want to find out the rates of stocks and the mutual fund units as on 31st January 2018 to get the furthering effect to calculate the long-term capital gain, from where I can get the rates of 31 January 2018? आपकी स्टेटमेंट्स के हिसाब से आप मिल जाएंगे, और अब जो कुछ स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड हैं भी रिट्रीट बना दिया कि वो अपने पोर्टफोलियो स्टेटमेंट उनके आते हैं, तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आया होगा आपके म्यूचुअल फंड से कि आप वो स्टेटमेंट कहाँ से देख सकते हैं और एनएवी चेक कर सकते हैं, वरना आप अपने म्यूचुअल फंड को भी लिख सकते हैं और उसके पोर्टफोलियो के एनएवी डिमांड कर सकते हैं। Our next caller is Gaurav from Ghaziabad. Gaurav, welcome to Market Mantra. Please go ahead and ask your question to Yamini. Good evening, ladies, and good evening, Market Mantra team. Sir, madam, my question is, how to identify if stock market or any particular sector is reaching its peak by way of PE or by way of any other technical analysis? Is there any way to find out peak or bottom? And second question is, madam, in the wake of higher GST earning, do you see it's going to be a trend or it's a one-time thing which has happened due to pent-up demand that had happened due to lockdowns and sort of thing in November, December? Or you see it's going to be a continuous trend thing? Okay, so for your trends that you need to look at buying and selling signals or the peak or the troughs that might be there is a technical analysis which looks at the primary trend, secondary trend and the tertiary trend. Primary trend tells you whether the particular market will go up or down and how much up it will go. Similarly, it tells you the trend that it will continue or it will not continue. So if it continues, it automatically will show you that there would be maybe higher peaks than what the peak would be. Also, previous moving averages are also an indicator as to how much level can a market go and what would be its resistance or the support levels at a particular time. Secondary trends show it you on the day-to-day basis, and so secondary trends as well as tertiary trends will show you on the day-to-day basis that would be there. So secondary trends are for the corrections. As far as the overall markets are there, we can't suggest anything like a particular specific peak level or a trough level through the particular trends itself. जी, और अब बात एशियाई बाजारों की कर लेते हैं। पिछले सप्ताह रिकॉर्ड ऊंचाई छूने के बाद आज मुनाफा वसूली के बीच एशियाई शेयर बाजार नुकसान के साथ बंद हुए। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में सरकारी बॉन्ड्स की यील्ड के 10 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचने की खबर है। अमेरिकी वित्तीय प्रोत्साहन पैकेज की इस सप्ताह घोषणा होने की संभावनाओं के बीच निवेशकों में उत्साह है। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 1.1% की आज गिरावट रही। दक्षिण कोरिया का कोस्पी और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.3% तक लुढ़क गए। हांगकांग के हैंगसेंग में 0.1% की मामूली बढ़त दर्ज हुई। जापान की निकेई में कारोबार नहीं हुआ।
अंतर्दिवसीय कारोबार के दौरान आज यूरोपीय शेयर बाजारों में भी गिरावट का रुख रहा। जर्मनी के डैक्स और फ्रांस के कैक दोनों में 0.5% की गिरावट रही। लंदन का FTSE 100 0.4% के नुकसान में रहा। And now we have Vijay Kumar from Chennai, who's waiting to talk to Yamini Agarwal. Vijay, please. Good evening, Yamini ji and the anchors. I have a basic question. In advanced countries, especially in the US, you have got NASDAQ, which deals with basically tech stocks, and the S&P 500 for the rest of the companies, probably in US. But in India, we have the two, the old one, BSE, which is now called Sensex, and in the last couple of decades, we have got Nifty. What are the listing norms for the companies to go for? It is a choice of the corporate to list in the BSE and NSE. Do we still need the twin indices for the country, or is it the choice of the SEBI and the listing company? Where do we stand vis-a-vis the developed countries, especially in terms, because what we find, even NAVs are quoted based on NSE quotation. What is the rationale behind the BSE Sensex and the Nifty for India? So your BSE and the NSE both are stock exchanges, and there are very other stock exchanges or the regional stock exchanges which exist. But BSE is the oldest stock exchange and has showed maximum volumes as well as overall trading developments. NSE was created by the government with a new platform and challenged the BSE's overall developments in the past and the trading. So there was a complete, with the program trading, a complete change was brought in the trading process with the coming up of NSE. NSE does enjoy a greater volume, more price transparency and other aspects, but companies still prefer BSE as well as NSE to list their stocks, primarily to get volumes from investors to invest. So that is one of the reasons, and it is, as far as the listing requirements are concerned, both the exchanges have their own listing requirements, which are specified by them, and any of the company can get listed in any of the stock exchanges that they want. Our next caller is Iftikhar from Thane. Iftikhar, welcome to the program. Hello, namaskar madam. जी, सवाल पूछिए इफ्तिखार जी अपना। सर, ये मैं एक ब्लाइंड पर्सन हूँ। जी। हेलो। जी हाँ, सुनिए, अब आप बताइए। हाँ, मैं एक ब्लाइंड पर्सन हूँ। अगर बैंक वगैरह में हमको जो है सर वो अपना ये फैसिलिटी नहीं दी जाती है, क्या बोलते हैं कि अरे वो मशीन से पैसा जो निकालते हैं, एटीएम मशीन की फैसिलिटीज हमको नहीं दी जाती है। क्या तो लीगली ऐसा कुछ है क्या? जी, एटीएम मशीन यूजुअली अब आरबीआई का 2008 में सर्कुलर आया था, जिसके हिसाब से जो आपके ब्लाइंड कस्टमर्स हैं उनको भी आपको एटीएम की फैसिलिटी देनी होगी, और अपने एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ ब्रांचेस में आपको एटीएम ऐसा लगाना होगा जिसमें ब्रेले की फैसिलिटी हो। तो आपको एटीएम की फैसिलिटी अगर वो नहीं दे रहे तो आप आरबीआई से कंप्लेन कर सकते हैं, और उनके जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनसे भी कंप्लेन कर सकते हैं। आपकी ब्रांच के लिए मैंडेटरी है कि आपको वो फैसिलिटी प्रोवाइड की। जी, और दिल्ली से अब फोन लाइन पर है डॉक्टर अनिल जी। डॉक्टर अनिल, हेलो जी। शुक्रिया विशाल जी। जी, धन्यवाद। मैं आपका विनम्र निवेदन करता हूं और मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं। ये फोन कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है, एनलाइटनिंग है। जी, शुक्रिया। और अनुभव रोहतगी जी, आपको भी मैं बहुत प्रणाम करता हूं, और यामिनी जी को भी। अब मेरा एक प्रश्न ये है कि कंज्यूमर सरप्लस एक कंसेप्ट होता है, उसके बारे में उसकी इंपॉर्टेंस और रेलेवेंस आज क्या है, और ये बताएं। और सेकेंडली मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ कि फॉरेन एक्सचेंज के संदर्भ में रुपए का भविष्य क्या रहेगा, यानी डेप्रिसिएट और एप्रिसिएट करता है, इससे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर क्या एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है या फेवरेबल इम्पैक्ट पड़ता है, इसके बारे में बताएं। जी, कंज्यूमर सरप्लस होता है जो कंज्यूमर विलिंग टू पे कर रहा होता है और जो पे करता है। अगर आप 100 रुपए देना चाहते हैं और आप सिर्फ 50 रुपए देते हैं उस चीज के, तो 50 रुपए आपका कंज्यूमर सरप्लस हो जाता है। डिफरेंस बिटवीन द विलिंगनेस टू पे minus the what you actually pay is consumer surplus. बेनिफिट इकोनॉमिक्स में इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर प्रोड्यूसर्स कोशिश करते हैं कि कंज्यूमर सरप्लस को एक्सप्लॉइट कर सके और कंज्यूमर से ले सकें, ताकि जो भी वो कंज्यूमर पे करना चाहता है उसको लिया जा सके। तो आपकी जितनी एक्स्ट्रा एडिशनल सर्विसेज होती हैं, या आप सिनेमा हॉल्स में
डिफरेंट सीटिंग प्राइसेस देते हैं या प्राइस डिफरेंशिएशन देते हैं इकोनॉमी क्लास, बिजनेस क्लास, एयरलाइंस में, ये सब कंज्यूमर सरप्लस को एक्सप्लॉइट करने के लिए होती हैं। आपका जहां तक है फॉरेन एक्सचेंज इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स को कैसे इफेक्ट करता है, अगर एक्सचेंज रेट माना जाता है कि डीवैल्यूड होता है तो वो हमारे एक्सपोर्ट्स को कॉम्पिटिटिव बना देता है और इम्पोर्ट्स को एक्सपेंसिव बना देता है। जब इम्पोर्ट्स एक्सपेंसिव हो जाते हैं तो उनकी डिमांड कम हो जाती है और एक्सपोर्ट्स जब कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं या चीपर हो जाते हैं तो उनकी डिमांड ज्यादा हो जाती है। जो एक बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड स्टेटमेंट होती है इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स की और कैपिटल फ्लोज की, उसमें एक बढ़ोतरी दिखाता है करंट अकाउंट्स के अंदर सरप्लसेस के थ्रू। जी, और अब एक खबर शहरी विकास से जुड़ी हुई। केंद्र सरकार ने आज कहा कि शहरों के कायाकल्प के लिए वर्ष 2004 से 2014 की अवधि के मुकाबले पिछले 6 सालों के दौरान 627% अधिक निवेश हुआ है। आवास और शहरी मामले मंत्रालय ने कहा कि शहरी बुनियादी ढांचा तैयार करने, इसे उन्नत बनाने और लोगों का जीवन आसान बनाने के काम में लगभग 12 लाख करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। वर्ष 2004 से 2014 के दौरान इस पर मात्र 1,50,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। कोविड-19 महामारी के दौरान आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत मिशनों ने उत्कृष्ट भूमिका निभाई है और महामारी के खिलाफ लड़ाई तथा नागरिकों का जीवन आसान बनाने की दिशा में विभिन्न कदम उठाए हैं। Union Home Minister Amit Shah has said that the coal sector has the potential to be the biggest contributor towards Prime Minister Narendra Modi's vision of making India a $5 trillion economy by 2024. Speaking at the launch of the single window clearing system for coal mines in the country today, Mr. Shah said the production of coal in the country has increased manifold in the last 6 years. He asserted that the sector has also the potential to boost Prime Minister's idea of Atmanirbhar Bharat. और अब बात सोने की कीमतों की। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने और चांदी की कीमतों में वृद्धि का असर आज घरेलू बाजारों में भी देखा गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX पर सोना 280 रुपए बढ़कर 49,247 पर कारोबार कर रहा था। चांदी भी 1,006 रुपए के उछाल से 65,237 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर जा पहुंची। न्यूयॉर्क के मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना बढ़त के साथ $1,850 प्रति औंस, जबकि चांदी $25.20 पर कारोबार कर रहे थे। Moving on to the oil prices today gained around 3%, recovering early trade losses amid hope of demand revival. In intraday trade, Brent crude prices were trading around $56 per barrel, while the WTI crude prices were around $52.20 per barrel. And Yamini, we were just earlier discussing, we had a caller who asked you a question about the oil prices. So oil prices are also, continuing with their upward trend now. How far do you see this trend going on? Will this continue for some time to come? And what can we expect for the domestic market? Well, yes, the oil prices are likely to go up because Saudi Arabia has decided to bring about a cut in its production, as well as the demand is recovering. As and when more and more economies are going back to their normal state, the oil prices, oil demand would actually increase, leading to an increase in the prices. As far as domestic scenario is concerned, till the time we see the prices not going very up, then we can't see the taxes going down. So the taxes will continue to play an important role in keeping the prices high. जी, और यामिनी, बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे, सोने की कीमतों में जो तेजी देखी जा रही है, क्या ये आगे भी जारी रहने वाली है या ये अभी कुछ हाल फिलहाल का ही एक वो है चेंज? जी, वो स्टेबलाइज करेंगी जैसे जैसे इकोनॉमी रिकवरी फेज में, नॉर्मल फेज में आ जाएगी तब। जी, यामिनी, डॉक्टर यामिनी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ी और आपने श्रोताओं के सवालों के जवाब दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और अब चलते चलते एक नजर आज की सुर्खियों पर। Before we close, a reminder of the headlines. Key domestic indices gained 1% to hit lifetime highs. Sensex achieves 49,000 level. Nifty closes near 14,500 mark. Rupee weakens 14 paisa against the US dollar. And Brent crude prices rise around 3% amid expectations of demand revival. And that's it in this edition of Market Mantra. Do tune in again tomorrow. Market Mantra. Market Mantra.